Hello बच्चों, myself Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, we are doing organic chemistry and it's the some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 2nd. Students, our today's subtopics are shapes of simple molecules, characteristic features of pi bond, then effect of hybridization on the bond length and bond strength beta. So let's start with the first subtopic, that is the shapes of the simple organic molecules. बच्चों, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, मीन्स वट एवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर देयर, अगर हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तो बेटा वी मस्ट नो द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पे वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो बेटा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सो बच्चों, just to explain these structures of the organic molecules, we must know the electronic concept of the valency and then the concept of hybridization. Although बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है. सो बच्चों, on the basis of hybridization, we can predict the geometry of the molecule. Let's take the case of methane molecule first of all. कार्बन जो है, that is the central atom in methane molecule, that is CH4 molecule. बच्चों, मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन है आपका, that is the central atom, and since 4 hydrogen atoms are attached to this, so it means it is going to form the 4 bonds with this carbon. So beta, and these 4 bonds are directed towards the ends of the regular tetrahedron that we have discussed in the last lecture, that is first lecture. But let's discuss further beta. Ground state configuration of the carbon, that is 1s2, 2s2, 2p2. So beta, in the valence shell there are your 4 electrons, that is your second shell is the valence shell over here, and excited state electronic configuration जो है कार्बन की, that is a 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1, because beta one of the electron will excite from s orbital to the vacant p orbital. एक इलेक्ट्रॉन बेटा s ऑर्बिटल से चला जाएगा p ऑर्बिटल में, एंड नाउ एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? यहां 1, और 2px में भी 1 है, 2py में भी 1 है, और 2pz में भी 1 है. नाउ बेटा दिस कार्बन बच्चों, दैट इज हैविंग दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स which will intermix together to give sp3 hybridization beta. So we can say जो आपका सेंट्रल एटम है मीथेन में, क्लियर, that possess sp3 hybridization beta. So let's see how is it sp3. Now let's say this is 2s orbital of your carbon which is having your 1 electron beta. This is
px orbital, let's say 2px orbital rather, that is also having a one electron. This is 2py orbital beta. Then here third, that is a 2pz orbital. So बच्चों, ये चारों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल इंटरमिक्स टुगेदर. क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है. दैट्स व्हाई दे विल इंटरमिक्स टुगेदर टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, shape and size as well beta. Now the hybridization will be of sp3. Now beta, this s orbital 2px, 2py, 2pz, they are going to intermix to give you this sp3 hybridization here. So now this is giving you this sp3 hybridized orbital. जैसे बेटा हाइब्रिडाइजेशन में आपने पहले किया होगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे. यहां 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं एक साथ, तो ये 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देंगे. और कौन से हाइब्रिडाइज्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. और यू नो दिस इज वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा. दिस इज अनदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज अ फोर्थ वन बेटा. अब बच्चों, ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड ईच sp3 hybridized orbital here have 1 electron each. So बच्चों, now यही आपके different 4 sp3 hybridized orbitals which are directed in towards the ends of your regular tetrahedron. So beta, they are having your 1 electron each, as I have told you. तो इनके साथ, since we are discussing your methane, अब now जो आपके ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, that is 1s1, तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल बेटा. तो ये जो 4 s ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स के, दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद दीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. और ये क्या दे देंगे बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड्स. क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर रहा है s ऑर्बिटल के साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ. क्योंकि यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ बेटा, which is also having a 1 electron. So they are going to overlap with each other to form the sigma bonds. अब बच्चों, ये क्या है? This is orbital overlap diagram of the methane. Now these are your 4 sp3 hybrid orbitals beta, which are directed towards the regular ends of the tetrahedron. Now these are the 4 hydrogen atoms beta. हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 1s1. सो बेटा s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल क्या रहता है बेटा? स्फेरिकल रहता है. सो दिस इज हैविंग योर s ऑर्बिटल विच इज हैविंग योर 1 इलेक्ट्रॉन. सो बेटा दीज 4 s orbitals of these 4 hydrogen atoms, they will overlap with these sp3 hybridized orbitals beta, and they will give you this orbital overlap diagram beta of this methane. So here see, 2 electrons are here, 2 electrons are here, 2 electrons are here, and always remember one bond, sigma bond, is having your 2 electrons. So beta, this is the orbital overlap diagram of the methane. So beta, in the different way I have told you the concept of your orbital overlap beta here. Now bachcho, this is the central carbon atom of methane that is going to form the 4 bonds with these 4 hydrogen atoms, and these hydrogen atoms are directed towards the ends of regular tetrahedron here. See, and the bond angle here is 109 degrees 28 minutes है बेटा. राउंड ऑफ करके 0.5 कर दिया. पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो बेटा 0.5 मीन्स हाफ डिग्री इज देयर.
So 30, that is there, approximately equal to your approximately close to 28 minutes. So that's why that is written over here 0.5 degree beta. So 109.5 degrees. Now beta, we can explain the structure of the ethane in the similar way beta. This is a ethane here. Now each carbon atom is your sp3 hybridized. Always remember बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? We just count the number of sigma bonds attached with this carbon atom, because these sigma bonds, they are formed by the overlap of the hybridized orbitals only. So बेटा, number of sigma bonds इस कार्बन के साथ कितने? 4, 1, 2, 3, 4. That's why it is your sp3 hybridized. Similarly here, this carbon is also your sp3 hybridized, क्योंकि there are the 4 sigma bonds. Now beta, let's say this is one carbon, this is another carbon of your this ethane, and ये क्या है बेटा आपके? These are the 4 sp3 hybridized orbital of each carbon. Now this sp3 hybridized orbital of this carbon and this sp3 hybridized orbital of this carbon beta, they will come close and they will overlap beta like this, and they will form the sigma bond. And these 3 sp3 hybridized orbital of this carbon beta and these 3, they are each having one electron again, and this sp3 hybridized orbital will overlap with the s orbital of the hydrogen. So these are the s orbitals of hydrogen beta, which are going to overlap with your this sp3 hybridized orbital and is going to form sigma bond. So यहां क्या बन गए बेटा आपके? 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और उसी तरह यहां भी. So बेटा, here all 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 sigma bonds are getting formed. Now बेटा, just see sp3 hybridized orbitals हैं ये सारे के सारे बेटा, और they are going to overlap with the s orbital over here to form the sigma bonds. So this is the orbital overlap diagram of the ethane. Now sigma bond beta, again this is also sigma bond. Now so this is a ethane beta bonding form, we are writing like this. So this is a 2-dimensional structure over here. Expanded formula of ethane is this one beta. Now that is a sigma bond which is formed as a result of your overlap of your these sp3 hybridized orbital beta, and this is another sigma bond which is formed as a result of your overlap of your this sp3 hybridized orbital and s orbital of the hydrogen beta. So now beta, this is a ball and stick model of your this ethane. Clear? This is a carbon, this is a carbon, and these yellow ones, these are your hydrogen atoms beta, और ये क्या हैं? They are directed towards the ends of your regular tetrahedron beta. One is this one, one is this one, one is this one, one is this one beta. So this is a ball and stick model of your ethane. Next, let's take the case of ethene. Now this is the orbital overlap diagram of the ethene. Now here, if you see, in case of ethene beta, the carbon here is sp2 hybridized, because you know ethene is CH2 double bond CH2. तो इस कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने बेटा? 3 हैं. दैट्स व्हाई इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी? sp2, और इसकी भी sp2 ही रहेगी. और सिंस इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 बेटा, तो इसका जो ज्योमेट्री रहेगी वो कैसी रहेगी? ट्रायगोनल प्लेनर. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जिस भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसका जो ज्योमेट्री रहेगी दैट विल बी योर ट्रायगोनल प्लेनर, और उसके साथ जो भी एटम्स अटैच्ड होंगे दे विल बी इन अ प्लेन. वो क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे. अब बच्चों, इस केस में इस कार्बन के
दो ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज करके बच गया एक, एंड दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। चलिए पहले, इससे पहले हम आगे जाएं, इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम कैसे बना बेटा, लेट्स सी। दिस कार्बन हियर, बताया अभी आपको कि ये sp2 है, तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हुआ बेटा, और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। और बच्चों ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके भी तीन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुए, एक ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा बेटा, और दे आर ऑल इन अ प्लेन। अब इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, और वो आपको क्या दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। अब बच्चों इस कार्बन के जो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो बच गए, क्योंकि एक तो ओवरलैप कर गया यहां। अब क्या करेंगे, ये जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ वो ओवरलैप कर रहा है बेटा, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली हियर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, और उसी तरह बेटा यहां भी s ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं आपके। एंड बेटा दिस हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स दे आर ऑल इन अ प्लेन। क्लियर। अब बच्चों जैसा कि अभी बताया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 है, तो वन इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट इज ऑफ p, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो ये वाला है बेटा, दिस इज ऑफ p ऑर्बिटल, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर। और वो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। सिमिलरली हियर बेटा दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, एंड दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एंड नाउ दे विल अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब ये क्या करेंगे बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। क्लियर। और वो क्या बना देंगे, आपके पाई बॉन्ड। क्या बना देंगे, आपके पाई बॉन्ड बेटा। सो ये चीज हमने सभी डिस्कस कर लिया बेटा, ठीक है। और ये जो जैसे अभी बताया आपको कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं बेटा, दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन अ प्लेन, और वो क्या करेंगे, दे विल अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैपिंग टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। नाउ let's take the case of ethyne beta. Ethyne, you know, this is CH triple bond CH beta. Now if you see here this carbon at the bottom here, this is having your one sigma bond here and one sigma bond between this carbon and this carbon beta, and two are the pi bonds. हमेशा याद रखें बेटा, दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। दो हैं तो एक सिग्मा है एक पाई है, अगर तीन है तो एक सिग्मा है और दो पाई है बेटा। इज दैट क्लियर। पाई बॉन्ड कभी भी बेटा, सिंगल बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होगा दो एटम्स के बीच में, ऑलवेज रिमेंबर। सो बच्चों नाउ दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, दो ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं बेटा। क्लियर, दैट इज sp hybridized. This is also your sp hybridized. So in ethyne beta, the carbon atom is sp hybridized. sp hybridization जो है इनकी, तो ये क्या देंगे, दो ही sp hybridized ऑर्बिटल देंगे, एंड दे विल ओरिएंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा, 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होगा बेटा, ठीक है। तभी इनके बीच में रिपल्शन क्या होंगी, मिनिमम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम दूर हैं। अब चलिए ये तो था बेटा। अब मान लिया ये कार्बन है, इस दिस इज वन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर, यू नो बेटा, दिस इज वन। अगर आप यहां देखें जहां कर्सर चल रहा है बेटा, जस्ट सी द कर्सर, मोमेंट ऑफ द कर्सर, दिस इज वन sp, ये स्मॉल लोब एंड दिस बिग लोब, दैट इज वन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा, बिग लोब एंड दिस इज स्मॉल लोब बेटा। नाउ दे आर your 2 sp hybridized orbital of this carbon beta. Similarly here this carbon is also having your 2 sp hybridized orbital. Clear? So यहां sp hybridized orbital की जो है ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, और आपको क्या दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड दे देगा यहां। और यहां इस sp hybridized orbital की जो ओवरलैपिंग हो रही है किसके साथ हो रही है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ हो रही है। और सिमिलरली यहां भी बेटा sp और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, और आपको ये सिग्मा बॉन्ड देने। अब बेटा ये तो था कि ये जो आपके हाइड्रोजन कार्बन और ये कार्बन और हाइड्रोजन दे आर इन अ प्लेन, और यू नो ये क्या है,
एक लाइन में ही है, जस्ट यू कैन से, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री है बेटा दैट इज लीनियर। क्लियर। सो अब जो बचे दो p ऑर्बिटल्स, क्लियर, अब वो क्या है, मान लिया दिस इज वन p ऑर्बिटल, दिस वन p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एंड दिस अनदर p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन बेटा, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एज वेल एज टू दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा। तो उसी तरह बेटा इस कार्बन के भी ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और वो क्या हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऐसे ऑर्बिटल जो एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, अब यहां ये वाला p ऑर्बिटल और ये वाला p ऑर्बिटल दे विल अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये दूसरे जो p ऑर्बिटल्स हैं विच आर परपेंडिकुलर टू दिस वन बेटा, क्लियर, वो भी क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैप बेटा। सो ये ओवरलैप किस तरह का हो जाएगा, लेट्स से my hands, these are the two carbon atoms, let's say. Now this is sigma bond and this is unhybridized p orbital of this carbon beta, or this is the unhybridized orbital of your this carbon. Is that clear? And they are going to overlap sidewise like this. Clear beta? Now उसी तरह अभी इस कार्बन के और इस कार्बन का एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और है बेटा, and let's say ये इस तरह लें अगर हम, लाइक दैट, ये पकड़ने में मुश्किल हो रहा है, लाइक दैट बेटा। अब ये वाले साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं और ये वाले अगर आप देखें ये और ये मींस ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एज वेल एज टू द दिस सिग्मा बॉन्ड बेटा। सो ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है और पीछे भी है। इज दैट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर ऑफ दिस इथाइन बेटा। क्लियर। और हम कह सकते हैं बेटा, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, आई मस्ट से ये जो आपका कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, लेट्स से दिस रिफल इज द सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और ये जो आपका ये वाला बन गया दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां फ्रंट में भी है, बैक में भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। सो बेटा वी कैन से जो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज ऑल अराउंड योर दिस कार्बन सिग्मा बॉन्ड। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो बच्चों, नाउ वट एवर आई हैव टोल्ड यू बेटा, that is all written over here. There are the two p orbitals on each carbon which are unhybridized. Now beta, these unhybridized orbitals are perpendicular to each other and undergoes the sidewise overlapping to form the pi bond. I think beta this must be clear now. Now bachcho, next is some characteristic features of pi bond. बच्चों, pi bond किन्हीं भी दो कार्बन के एटम्स के बीच में अगर है बेटा, तो जो भी एटम्स उन कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं दे ऑल विल बी इन अ प्लेन। ये पहले भी मैंने कहा बेटा आपको। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर सपोज इन दो कार्बन के बीच में क्या है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सो देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो sp2 है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी बेटा। सो मींस ऑल द एटम्स अटैच्ड टू दीज कार्बन्स दे विल ऑल बी इन अ प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे बच्चों। नाउ दूसरा है बेटा कि जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं पाई बॉन्ड के, वो क्या हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन दे आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बेटा ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? They are perpendicular. You know, this is a plane. Clear? Let's say this carbon, hydrogen, and carbon and hydrogen atom, they are all in a plane, and these p orbitals, they are perpendicular to this plane, beta. Now, always remember, beta, ये जो rotation है around this carbon and carbon double bond, beta, that is not possible. That is restricted. You know, beta, let's say अगेन बेटा, ये जो मेरे दो हाथ हैं ये क्या है, लेट्स से कार्बन एटम्स हैं, और ये पेंसिल्स जो मैंने ले रखी हैं दीज आर द लेट्स से पाई बॉन्ड। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं बच्चों, इज इट पॉसिबल? नो, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल until and unless this bond will not be broken. You know, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है आपकी रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड।
सो बच्चों, नेक्स्ट जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड्स की, अभी इथाइन के केस में मैंने काफी डिटेल में किया बेटा। तो ये क्या है, जो भी आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, दैट लाई above the plane. Just see this structure here beta. Now pi electron density is here above the plane and below the plane. Is that clear? Of the bonding atoms beta. अब बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह होने की वजह से जो आपके जो भी अटैकिंग रीजेंट है उनको इजिली अटैक कर सकते हैं. सो वट एवर हैव रिटन, लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये कैन से या इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट लाइज एवर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स. नंबर 1. नेक्स्ट क्या कहा मैंने कि ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर और नीचे, एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इज दैट क्लियर? ये क्या करता है, दिस अलाउज द पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, बीइंग इजिली अवेलेबल टू द अटैकिंग reagents. सो बच्चों, तभी ये जो आपके पाई बॉन्ड्स हैं, दे आर योर मोस्ट रिएक्टिव साइट्स इन द मॉलिक्यूल. कैसे मॉलिक्यूल? जिनमें आपके ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड द टुडेज लेक्चर.